أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا. جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سو کر دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کر دی. محمد کے صحابہ محمد کے ساتھی وہ ایسے جانسار صحابہ ہیں، ایسے جانسار ساتھی ہیں جن کے نزدیک محمد کی جان صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے کہیں زیادہ عزیز ہے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سخت گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں، چچلاتی ہوئی گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے. علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ملی، جنہیں دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا، اور اللہ نے قرآن کے ذریعے ان سے رضامندی کا اعلان کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. هم نجوم في الدياجي وعلى الباغي رجوم، هم بدور قد تجلت لا تواريها الغيوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ويفتح الله على يديه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. متفق علیہ. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، پچھلے چند خطبوں سے میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین کی سیرت اور ان کی حیات مبارکہ کی چند جھلکیاں اور انہوں نے اس دنیا کے اندر زندگی کیسے گزاری اور انہوں نے
इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत के लिए क्या कुर्बानियां दी, ये चंद जुमों से आपके सामने इस पर खुतबे हो रहे थे। आज उन्हीं खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत और उनकी हयात मुबारक और उनकी फजीलत के ताल्लुक से आपके सामने चंद बातें रखूंगा। मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें दुरुस्त बातें कहने और उन पर अमल करने और उन्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने इस उम्मत के अंदर दूसरे या तीसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। बाज़ मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इन्होंने दूसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया और बाज़ ने लिखा कि तीसरे नंबर पर इस्लाम कबूल किया। मगर सब मुत्तफ़िक़ हैं इस बात पर कि बच्चों में सबसे पहला बच्चा जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करता है, ऐलान करता है, वो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और आपने इस्लाम को अपनी बीवी के सामने पेश किया, खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने पेश किया, फौरन इस्लाम कबूल करती हैं। और ऐसे ही मेरे भाइयों, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने पेश किया, इस्लाम कबूल करते हैं। और बच्चों में सबसे पहला बच्चा जिस पर आपने इस्लाम को पेश किया वो अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनकी उम्र उस वक्त 10 साल थी और नबूवत के आप को नबूवत मिलने से 10 साल पहले वो मक्के के अंदर पैदा हुए और जब आपको नबूवत मिली उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। आपने उन पर इस्लाम पेश किया, उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल किया और कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर उन्होंने अपने इस्लाम का ऐलान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने सीने से लगाया, उनके लिए दुआ की, अपने घर लाए और आपने उन्हें इस्लाम की तालीम दी, उन्हें उनकी इस्लामी तरबियत की। और मेरे भाइयों, आपकी तरबियत का नतीजा था कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मदीना हिजरत करने का हुक्म दिया तो मेरे भाइयों, आप हज़रात को अच्छी तरह मालूम है कि मक्के वालों ने ये प्लानिंग की थी कि आज की रात हर कबीले और खानदान से एक नौजवान अपनी नंगी तलवार लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा करेगा। और जब वो सुबह अपने घर से निकलेंगे तो मक्के के सारे कबीले के नौजवान जो आपके घर का मुहासरा किए रहेंगे, वो सारे के सारे लोग, सारे कबीले के लोग, हर कबीले का एक नुमाइंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़ेगा और सब लोग मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खात्मा कर देंगे। और इस तरीके से मोहम्मद के घर वाले, उनके खानदान वाले मक्के के सारे कबीलों का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो मेरे भाइयों, जो उन्होंने ये प्लानिंग की, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर के साथ तुम मक्के से मदीना हिजरत कर जाओ। मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ अमानतें थी मक्के वालों की। आपने अली बिन अबी तालिब को यह हुक्म दिया कि आज की रात मक्के के लोगों ने, मक्के के नौजवानों ने मिलकर ये प्लानिंग की है कि वो आज मेरे घर का मुहासरा करेंगे और जब मैं सुबह घर से निकलूंगा सारे नौजवान मिलकर मुझ पर हमला करेंगे। ऐ अली, मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूं कि आज मैं अपने बिस्तर पर ना रहूंगा, आज मेरे बिस्तर पर तुम सोओगे और मुझे अल्लाह की तरफ से हिजरत का हुक्म हुआ है। मेरे भाइयों, उस रात जब मक्के के दुश्मनान आपके घर का मुहासरा कर नंगी तलवार लेकर घेर लेंगे, उस रात आपके बिस्तर पर सोना मौत को दावत देना था, अपने आप को हलाकत में डालना था। अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे भाइयों, उनके नजदीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अपनी जान से कहीं ज्यादा अजीज थी और उन्होंने कबूल किया मेरे भाइयों। और उस रात अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोकर दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि मोहम्मद के सहाबा, मोहम्मद के साथी वो ऐसे जानिसार सहाबा हैं, ऐसे जानसार साथी हैं जिनके नजदीक मोहम्मद की जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानों से कहीं ज्यादा अजीज है। उन्होंने दुनिया के सामने ऐसी मिसाल कायम कर दी। मेरे भाई, मोहब्बत की ऐसी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है, मोहब्बत की ऐसी मिसाल दुनिया पेश नहीं कर सकती है। किसी नबी के सहाबा ने, किसी नबी के साथियों ने ऐसी जानिसारी का सबूत नहीं दिया है जो जानिसारी का सबूत हमारे सहाबा ने, पाकिस्तान नफूस ने जो मिसाल कायम की है, जो जानिसारी मोहब्बत की जो मिसालें कायम की हैं, मेरे भाइयों, रहती दुनिया तक उन मिसालों को कोई भूल नहीं सकता है, ये उम्मत भूल नहीं सकती है।
یہ صحابی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی۔ مسند ابی داؤد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وابو عبیدہ فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ۔ ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی اور یہ خوشخبری دی کہ فلاں جنت میں ہیں، فلاں جنت میں ہوں گے، فلاں جنتی ہیں، فلاں جنتی ہیں۔ انہی پاکیزہ نفوس میں سے، انہی پاکیزہ ہستیوں میں سے جو ہستی تھی وہ علی بن ابی طالب کی ہستی تھی۔ فرمایا تھا آپ نے کہ علی تم مجھ سے ہو میں تم سے ہوں، انت منی تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اہل بیت میں سے ہو، ہمارے گھر والوں میں سے ہو۔ اور فرمایا آپ نے من سب علی فقط سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا، جس نے علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسرد صحیح مروی ہے۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ میری امت کے لوگوں، جو شخص علی کو برا بھلا کہے گا وہ شخص گویا کہ مجھے برا بھلا کہا، جس نے علی سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ ایسے ہی ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ نے مدینے کے منافقین کے سامنے یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے، آپ نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے، انہو فرمایا آپ نے انہو لا یبغضنی الا منافق ولا یحبنی الا مومن، ولا یحبنی الا مومن، کہ جو مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ مومن جو ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا، اور جو منافق ہوگا منافق کی پہچان یہ ہوگی کہ منافق کی نشانی میں سے نشانی یہ ہوگی کہ وہ علی سے اور اہل بیت سے نفرت کرے گا، علی سے اور اہل بیت سے نفرت کرے گا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہی ہوا کہ اہل بیت سے محبت کرنا، علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا یہ مومن اور ایمان کی علامت اور نشانی ہے۔ مومن جو ہوگا وہ علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہیں کرے گا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن جو ہوگا وہ علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہیں کرے گا بلکہ ان سے محبت کرے گا۔ اور الحمدللہ یہ امت آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ اہل بیت سے محبت کرتی رہے گی، صحابہ سے محبت کرتی رہے گی۔ اور میرے بھائی، اس امت میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے، اس امت کے مومنوں میں ایسا کوئی مومن نہیں ہوگا، نہ ہوا ہے، نہ پیدا ہوا ہے، نہ پیدا ہوگا جو مومن اہل بیت سے نفرت کرے۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا آپ نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لے کر کے آپ مشورے کے لیے جمع ہوئے اور یہ پرانی کی کیسے مرحب سے مقابلہ کیا جائے اور کیسے خیبر کو فتح کیا جائے، میرے بھائیوں، اس موقع پر آپ نے بشارت دی لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ فرمایا آپ نے لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، رواہ البخاری مسلم۔ میرے بھائیوں، خیبر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی کہ کل میں مسلمان فوج کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور جس کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خیبر کو فتح فرمائے گا۔ میرے بھائی، صحابہ کرام لوٹتے ہیں اپنے خیموں کی طرف اور رات گزارتے ہیں۔ ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ کل اسلامی جھنڈا مسلم فوج کا جھنڈا ہمیں دیا جائے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خوشخبری سنائی تھی جس بشارت کو پانے کی ہر کوئی تمنا کرتا تھا۔ فرمایا تھا آپ نے کہ کل میں اسلامی جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمائے گا۔ ہر شخص تمنا کرتا تھا کہ کل جھنڈا مجھے ملے، اور بڑے بڑے صحابہ کرام اس امید میں تھے کہ شاید مجھے اسلامی جھنڈا دیا جائے گا۔
मेरे भाइयों, मुसलमान इस तमन्ना के साथ रात गुजारे। सहाबी रसूल उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इमारत और हुकूमत और जिम्मेदारी को पसंद नहीं किया सिवाय उस रात के जिस रात आपने खुशखबरी दी थी कि कल मैं झंडा एक ऐसे शख्स को दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में उस रात के अलावा कभी मैंने किसी हुकूमत या इमारत और मनसब को पसंद नहीं किया था, मगर उस रात बशारत सुनकर मैंने ये तमन्ना की थी, काश मुझे कल मुस्लिम फौज का अमीर बनाया जाए और झंडा मेरे हाथ में दिया जाए। बहरहाल मेरे भाइयों, जब वो सुबह होती है और सहाबे किराम इस तमन्ना के साथ शायद मुझे इस्लामी झंडा मेरे हाथ में दिया जाए, इस तमन्ना के साथ वहां पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी सहाबे किराम से पूछते हैं, ऐन अली इब्न अबी तालिब, ऐन अली कहां? लोगों ने कहा कि उनकी आंख में तकलीफ है और वो आराम फरमा रहे हैं। फरमाया आपने उन्हें बुलाओ। चुनांचे उन्हें बुलाया गया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक, अपना थूक उनकी आंख में लगाया और कहा, खड़े हो ऐ अली, और ये इस्लामी झंडा तुम्हारे हाथ में दिया जा रहा है और तुम निकल पड़ो। जिस मुहिम पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं उस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए और खैबर को फतह करने के लिए तुम उठ खड़े हो। चुनांचे आप नसीहत की कि ऐ अली, वहां पहुंचने के बाद, मैदान में पहुंचने के बाद तुम उन्हें सबसे पहले इस्लाम की दावत देना, उन्हें इस्लाम की दावत देना और उन्हें अल्लाह के हुकूक की तालीम देना, उन्हें अल्लाह के हुकूक के बारे में, अल्लाह के हक के बारे में उन्हें सिखाना समझाना। अगर इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो याद रखो, वल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम। ऐ अली, याद रखो इस बात को, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह तुम्हारे जरिए किसी एक आदमी को हिदायत दे दिया तुम्हारे लिए सिर्फ ऊंटों से भी ज्यादा बेहतर है। यह हदीस, ये लंबा वाकया सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे भाई, इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि अल्लाह अली रज़ियल्लाहु अन्हु को हस्ती हैं जिनसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता था, जिनसे अल्लाह के रसूल मोहब्बत करते थे और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते थे। मेरे भाई, ये अजीम खुशखबरी, ये अजीम बशारत वही के जरिए और रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक से अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलती है। ये वाज़ेह दलील है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये अल्लाह के नजदीक इंतहाई महबूब थे और रसूलुल्लाह के नजदीक इंतहाई महबूब थे। और फरमाया, एक मरतबा में फरमाया आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया, उनकी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया, उनके बेटे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुलाया और कहा, आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को बुला करके कहा कि अल्लाह, ये अहले बैत, ये हमारे घर वाले हैं, ए अल्लाह तूने पाक कर दे, ए अल्लाह तूने शिर्क, कुफ्र और गुमराही से पाक कर दे। चुनांचे उस मौके पर आयत नाज़िल हुई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, कि ऐ अहले बैत, अल्लाह तुमसे नजासत और गंदगियों को, शिर्क और कुफ्र की गलाज़तों को तुमसे क्या दूर कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले बैत की पाकीज़गी को और रसूलुल्लाह के घर वालों की पाकीज़गी को अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया कि अल्लाह तुमसे, ऐ अहले बैत, तुमसे रिज्स मुराद शिर्क और कुफ्र की गलाज़त है, गलाज़त है कि अल्लाह तुमसे इसको दूर कर देगा, तुमसे शिर्क और कुफ्र को दूर कर देगा, तुमसे नजासत और गंदगी को और कुफ्र और निफाक की गंदगी को अल्लाह तुमसे दूर फरमा देगा। मेरे भाइयों सहाबी हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर शहीद होने की बशारत सुनाई, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही के जरिए, अपने हबीब के जरिए, नबी के बाद आने वाले उन हिदायत याफ्ता खुलफा में से बनाया जिनके बारे में हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ना और जहां इस मसले में मेरी सुन्नत ना मिले, मेरा हुक्म ना मिले, मेरी राय ना मिले, मेरी बात ना मिले, वहां तुम खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम की सुन्नतों को, उनके अक़वाल को, उनके फरामीन को, उनके अहकामात को लेना और उनकी सुन्नतों पर अमल करना। ये अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये खुलफाए राशिदीन में से चौथे खलीफा हैं और इन्होंने इनकी खिलाफत
खिलाफत मेरे भाइयों, इनकी खिलाफत 4 साल 9 महीने 3 दिन थी। 4 साल 9 महीने 3 दिन थी। और ये वो खलीफा हैं जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खुद हिदायत याफ्ता हैं और ये दूसरों को हिदायत की रहनुमाई करने वाले हैं, दूसरों को हिदायत की सही रास्ते की रहनुमाई करने वाले हैं। एक मरतबा ग़ज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत की निगरानी के लिए, घर वालों की निगरानी के लिए आपने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में छोड़ दिया। कहा है अली तुम मदीने के अंदर रहो, तुम मदीने के अंदर अहले बैत की निगरानी करो, अहले बैत की निगरानी, घर वालों की निगरानी करो, खबरगिरी करो। चुनांचे मेरे भाइयों, मदीने के मुनाफिकीन ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु का मजाक उड़ाया और कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली को अपने ऊपर अपने लिए बोझ समझते हैं, इसलिए अली को यहाँ छोड़ गए, अली को अपने साथ लेकर नहीं गए रज़ियल्लाहु अन्हु। जब अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुनाफिकीन की बात सुनी तो उन्हें गैरत आई और वो लश्कर से जा मिले, इस्लामी फौज से, इस्लामी लश्कर से जा मिले और कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सहाबा को, मेरे साथियों को जिहाद के लिए ले जा रहे हैं और मुझे बूढ़ों और बच्चों में, औरतों में छोड़ के जा रहे हैं। फरमाया आपने अमा तरदा अन तकूना मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, ऐ अली क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए उस जगह पर हो जिस जगह पर मूसा के लिए हारून थे, जिस जगह पर मूसा के लिए हारून थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर पर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने बुलाया तौरात देने के लिए, तो आपने अपनी कौम और कबीले में हारून अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और कहा कि तुम घर वालों की खबरगिरी करना और कौम के लोगों की खबरगिरी करना। फरमाया आपने क्या है अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे हारून मूसा के लिए थे। ये हदीस सही बुखारी से मुस्लिम के अंदर मौजूद है। मेरे भाई इस हदीस से कोई ये दलील पकड़ सकता है और कोई ये शुबहा पेश कर सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद खिलाफत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सौंपना चाहते थे। कोई इस हदीस से दलील पकड़ सकता है। लेकिन मेरे भाइयों, आपको अच्छी तरह मालूम है और शायद न मालूम हो तो मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर जो खिलाफत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो हारून अलैहिस्सलाम को खिलाफत दी थी, ये खिलाफत वक्ती थी। ये अपनी वफात के बाद की तरफ, अपनी वफात की बाद खिलाफत की तरफ इशारा नहीं था, इसलिए कि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की वफात से 40 साल पहले फौत हो चुके थे। और मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो खलीफा हुए कौन थे? वो यूशा बिन नून थे। अगर अपने मूसा अलैहिस्सलाम की मुराद ये होती, मूसा अलैहिस्सलाम अगर अपने बाद हारून अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाना चाहते, या अगर इस हदीस से मुराद ये होती कि जिस तरह से मूसा के बाद हारून खलीफा हैं, अगर मूसा के बाद हारून अलैहिस्सलाम खलीफा होते, वाकई होते, तो हाँ आप इस हदीस से दलील पकड़ सकते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या खलीफा होंगे। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हारून अलैहिस्सलाम खलीफा होते तो इस हदीस से दलील पकड़ी जा सकती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा होंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो खलीफा हुए थे वो यूशा बिन नून थे और हारून अलैहिस्सलाम जो मूसा अलैहिस्सलाम के कायम मुकाम थे वो वक्ती तौर पर थे। तो मेरे भाई, इस हदीस से ऐसे यहाँ पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कायम मुकाम मदीने के अंदर जो रहे, ये वक्ती तौर से रहे। वरना दूसरी हदीसें वाज़ेह तौर पर ये साबित करती हैं कि आपके बाद जो खलीफा होंगे वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। और इस तारुफ से मैंने आपके सामने पहले खुतबे जुमा में बतलाया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे अहम मौके पर अपनी खिलाफत, अपनी जानशीनी और अपना मुसल्ला और अपना कायम मुकाम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। तो मेरे भाई, कोई इस हदीस से ये दलील ना पकड़े। इस हदीस से मुराद ये है कि जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे तबूक के मौके पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने कायम मुकाम बनाया, गोया की दलील है कि आपकी वफात के बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु क्या है, पहले खलीफा होंगे। मैं इससे पहले बता चुका हूं कि ग़ज़वे उहद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कायम मुकाम मदीने के अंदर किसको बनाया था? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु को बनाया था। तो इस तरीके से अल्लाह
موقع پر مختلف غزوات مختلف مواقع پر آپ نے اپنے بعض صحابہ کو اپنا قائم مقام اور نائب بنایا. اس سے یہ دلیل نہیں کر سکتے ہیں کہ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ علی رضی اللہ عنہ ہوں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کو مختلف مواقع پر اپنا خلیفہ اور جانشین بنایا تھا. جیسے کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا, مدینے میں اپنا جانشین مقرر کیا تھا. تو بہرحال اس حدیث سے بہرحال آپ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے, جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں میرے بھائی وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور غزوہ بدر کے شرکاء کے بارے میں, بدری صحابہ کے بارے میں آسمان سے وحی آئی کہ اے رسول تمہیں نہیں معلوم, وما یدریک تمہیں نہیں معلوم, لعل اللہ اطلع علی اہل بدر, اللہ نے اہل بدر کی طرف دیکھا اور کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, اے بدر کے صحابہ, اے بدری صحابہ جو چاہو کرو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے, علی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے, بیعت رضوان میں شریک ہوئے. اور قرآن کی آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ ان مومنوں سے راضی ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے, جو رضوان درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے, موت پر بیعت کر رہے تھے. جن صحابہ نے آپ سے موت پر بیعت کی ہے ان صحابہ سے اللہ کہتا ہے کہ ہم راضی ہیں اور خوش ہیں. تو میرے بھائی یہ بدری صحابہ ہیں, بیعت رضوان میں شریک ہوئے. اور اسی طریقے سے تبوک کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے, تبوک کے علاوہ جتنے غزوات ہوئے سارے غزوات میں علی رضی اللہ عنہ شریک ہوئے اور انہوں نے اس طرح سے غازی کا مقام پایا. اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر یہ خوشخبری دی تھی کہ علی شہید ہوں گے, علی شہید ہوں گے. چنانچہ میرے بھائیوں علی رضی اللہ تعالی عنہ سن 40 ہجری میں 21 رمضان کو لوگوں کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے گھر سے نکلے اور مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں عبد الرحمن بن ملجم خارجی مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا اور آپ نے اسے اٹھایا اور کہا پیٹ کے بل نہ لیٹ, یہ پیٹ کے بل لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا ہے. وہ شخص برے ارادے سے اپنی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوا تھا اور اس نے اقرار کیا تھا کہ میں نے اس تلوار کو 1000 درہم میں زہر آلود کیا ہے, 1000 درہم کے بدلے میں اس تلوار کو میں نے زہر آلود کیا ہے. اور اس اگر یہ تلوار پورے مدینے والوں پر چلے تو یہ زہر سب کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے, یہ تلوار سب کو مارنے کے لیے, سب کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے, اس لیے کہ یہ تلوار زہر آلود ہے. میرے بھائیوں عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے علی رضی اللہ عنہ پر وار کیا اور اس طریقے سے علی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کی مدت خلافت 4 سال 9 ماہ 3 دن رہی, 4 سال 9 ماہ 3 دن رہی. میرے بھائیوں ہم نے اس مختصر احادیث سے اور مختصر واقعات سے جان لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہیں دنیا کے اندر جنتی ہونے کی بشارت ملی, جنہیں دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی کا اعلان کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے ان سے رضامندی کا اعلان کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا صحابہ کے درمیان کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, اللہ ان سے محبت کرتا ہے, یہ رسول سے محبت کرتے ہیں, رسول ان سے محبت کرتے ہیں وغیرہ بشارتیں اور خوشخبریاں اور فضیلتیں. اس صحابی کی بلی صحابی رسول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جتنی فضیلتیں علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہیں کسی اور صحابی کے بارے میں اتنی فضیلتیں نہیں نقل کی گئی ہیں, نہیں روایت کی گئی ہیں. یہ اور بات ہے کہ میرے بھائیوں بعض لوگوں نے علی رضی اللہ عنہ کے سامنے غلو کرتے ہوئے روایتیں گڑھی, احادیث گڑھی اور منمانی واقعات گڑھے اور بہت ساری باتیں گڑھ کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقام کو بڑھانے کی کوشش کی یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کو اس مقام پر لا کھڑا کیا جو مقام اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے, یہاں تک کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ باتیں کہنی شروع کی جو باتیں ایک نبی کے شان میں کہی جاتی ہیں, جو باتیں ایک اللہ کے شان میں کہی جاتی ہیں, ان باتوں کو
अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ मंसूब किया और उनके शान में ऐसी बातें कहना शुरू किया, उन्हें महबूब तक करार दिया, उन्हें इलाह तक करार दिया। और मेरे भाई आपको मालूम है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाज लोगों को आग में जलाया था। जब उन लोगों ने कहा कि अली माबूद है, अली इलाह है, तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाज लोगों को जलाया था आग में और कहा था ला युअद्दब बिन्नार इल्ला रब्बुन नार। अगर तुम मुझे रब मानते हो तो रब की शान ये होती है कि रब जो होता है वो काफिरों को आग में जलाएगा, रब काफिरों को आग में जलाएगा। अगर मैं रब हूँ, अगर तुम मुझे रब कह रहे हो, तुम काफिर हो और मैं तुम्हें आग में जलाऊंगा। कुछ ऐसे लोगों को उन्होंने आग में जलाया था और उन्हें हलाक किया था। मेरे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह अन्हु का यकीनन अपना एक मकाम है, मगर उनकी शान में गुलू करना और उनकी शान में ऐसे अलकाब बयान करना जो अलकाब अल्लाह के लिए होने चाहिए, जो सिफात अल्लाह की है वो सिफात अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बयान करना, और जो काम अल्लाह के लिए होना चाहिए वो काम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए करना, ये क्या इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है? इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। मेरे भाइयों, बात लोगों ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम के आगे करमल्लाहु वजहहु ये लक़ब लिखना शुरू किया, है ना? गलत है। इसलिए कि इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सलफ मुत्तफिक है इस बात पर कि सहाबा को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो लक़ब दिया है कि अल्लाह उनसे राजी है, सारे सहाबा को रज़ी अल्लाह अन्हु ही कहना चाहिए। इसमें दुआ भी है, इसमें क्या है? दुआ है। लेकिन अली अलैहिस्सलाम कहना, करमल्लाहु वजहहु कहना, इसे उलमा ने नाजायज करार दिया है और कहा कि सारे सहाबा को अल्लाह ने जो लक़ब दिया है वही लक़ब जो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए है वही क्या है? अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी होना चाहिए। और रज़ी अल्लाह अन्हु कहना यही दुरुस्त है, और करमल्लाहु वजहहु कहना, मेरे भाई अलैहिस्सलाम कहना, ये आम सहाबा के अलकाब से आगे बढ़ना है, इसमें कोई शक नहीं। वही के जरिए इबादत लाई गई है इस उम्मत में, बल्कि दुनिया के अंदर नबियों और रसूलों के बाद सबसे अफजल हस्ती, सारी उम्मतों में सबसे अफजल हस्ती वो सिद्दीक़ अकबर की हस्ती है। उनसे किसी को आगे समझना, उनसे किसी को अफजल और आला समझना, ये वही पर जुरात करना है। ये अल्लाह की वही से आगे बढ़ना है, अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नबी और रसूलों के बाद उम्मतियों में सबसे आला दर्जा, सबसे अफजल दर्जा इस उम्मती को दिया है। वो कौन है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु है, और सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो मेरे भाइयों, उनसे किसी और सहाबी को आगे बढ़ाना, इसमें कोई शक नहीं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु अहले बैत में से हैं। उनसे मोहब्बत करना, उनका एहतराम करना और उनके मकाम को पहचानना, उनकी इज्जत करना, ये हम पर लाजिम है, ये हम पर क्या है? लाजिम है। और जो उन्हें बुरा भला कहे और जो उनसे बुग़्ज़ नफरत रखे और जो उनसे दुश्मनी रखे, ये क्या है मेरे भाइयों? ये निफाक की अलामत है, ये मुनाफिक की पहचान है। और जिसने अली को गाली दी, बुरा भला कहा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा, गाली दी। मैं मानता हूं इस चीज को मेरे भाइयों, लेकिन अली रज़ी अल्लाह हर एक को अंज़िलुन्नास मनाज़िलहुम, हर एक को उनके मकाम पे रखो, उनका मकाम जो है वो इस उम्मत के चौथे नंबर पर है। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, के बाद उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, और चौथे नंबर पर इस उम्मत के अंदर जो सबसे आला हस्ती है वो अली रज़ियल्लाहु अन्हु की हस्ती है। तो हर एक को उसके मकाम में रखना और इस तरह से किसी को आगे बढ़ाना, ये वही पर चुरात करना है, ये वही की खिलाफ वर्जी करनी है। ये कोई कह सकता है कि इसमें कौन सी हर्ज की बात है? अगर हम ये कहें कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा अफजल अली रज़ियल्लाहु अन्हु है, अगर कोई ये कहता है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु ये क्या है? सारे सहाबा से अफजल, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से अफजल है, उस्मान गनी से अफजल है, इसमें कौन सी हर्ज की बात है? बज़ाहिर कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन हर्ज की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला की वही की खिलाफ वर्जी करना है। अल्लाह को खूब मालूम है कौन अफजल है, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही के जरिए मेरे भाइयों इन खुलफाए राशिदीन को जो मकाम और दर्जा दिया और जिसकी जो तरतीब बतलाई गई, अगर हम उस तरतीब की खिलाफ वर्जी करते हैं तो गोया कि हम वही की खिलाफ वर्जी करते हैं, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं। अल्लाह ने जिसको जो मकाम दिया है हम उसको उस मकाम पर रखें, अल्लाह ने जिसको जो मकाम दिया है हम उसको उस मकाम पे रखें। हमें ये हक नहीं है कि हम जिसका चाहे मकाम बढ़ा दें, जिसका मकाम चाहे घटा दें। अल्लाह ने हमें पावर नहीं दिया है, हमें ये इख्तियार नहीं दिया है। अल्लाह की वही से आगे बढ़ना, अल्लाह के हुक्म से आगे बढ़ना जायज और दुरुस्त
नहीं है। तुम्हारा ये अकीदा होना चाहिए कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये खुलफाए राशिदीन में चौथे नंबर पर बरहक खलीफा हैं। ये वो खलीफा हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे अपनी जिंदगी में राजी रहे, अपनी जिंदगी में क्या है, राजी रहे। और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने अहले खिलाफत में अपना जो मुस्तशार मुकर्रर किए, जिसको अपना दायां बाजू समझते थे, जिनसे हर काम मशवरा लिया करते थे, मेरे भाई अली रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ये सहाबी हैं जिनसे खलीफा फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु और खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ये बराबर क्या है, अपने हुकूमती उमूर में मशवरे लिया करते थे। और एक मर्तबा और फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लौला अली लहलक उमर, अगर खिलाफत के कामों में, हुकूमत के कामों में अगर अली का साथ ना होता तो हम तबाह हो गए होते, हम हुकूमत नहीं कर पाते, तबाह हो गए होते। मेरे भाइयों, सहाबा, ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हमेशा अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने करीब करते थे, उनसे मशवरे लिया करते थे। और ये अली रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबा किराम से मोहब्बत और उन खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे। बल्कि एहतराम की एक मिसाल कायम की इन्होंने कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम जो फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बदन से पैदा हुई थी, उम्मे कुलसूम की शादी अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से की। ये मोहब्बत की आला मिसाल कायम की। और इस तरीके से उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले बैत की नस्ल बढ़ाने में शरीक किया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले बैत की नस्ल बढ़ाने में शरीक किया। और अपनी बेटी उम्मे कुलसूम की शादी आपने उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु से की। तो मेरे भाई, अली रज़ी अल्लाह अन्हु से सारे सहाबा किराम राज़ी और खुश थे, उनसे मोहब्बत करते थे, उनका एहतराम करते थे, और उम्मत उनसे मोहब्बत करती है, उनका एहतराम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें पुकारना शुरू कर दें, उनके लिए वो सिफात बयान करना शुरू कर दे जो सिफात अल्लाह के लिए होनी चाहिए। आज लोग अली मुश्किल कुशा, अली खालिद रवा या अली मदद, इस तरह की दुआएं करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनको अपना मुश्किल कुशा खालिद रवा समझते हैं। मेरे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह ने मकाम नहीं दिया। अल्लाह ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी सिफात में, अपनी खूबियों में, अपने कामों में, अपनी बात में शरीक नहीं किया। अल्लाह पाक है। अल्लाह को किसी मदद और सहारे की जरूरत नहीं। अल्लाह ही नफा नुकसान का मालिक है, वही मदद करने वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तालीम दी थी, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। ऐ मेरे सहाबा, जब तुम सवाल करो, मांगो तो अल्लाह से मांगो, जब तुम मांगो तो अल्लाह से मांगो, और जब मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। मेरे भाइयों, अगर अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुश्किल कुशा होते तो आज के जमाने में मेरे भाई कितने रूनमा हुए, फितनों के दरवाजे खुले। मुनाफिकों ने, खारजियों ने और दीगर लोगों ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ जो प्रोपेगेंडे किए और मुसलमानों की इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। मेरे भाइयों, अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगर मुश्किल कुशा होते तो सबसे पहले अपने दौर के लोगों की मुश्किलात को दूर करते, सबसे पहले मदीने के लोगों की मुश्किलात को दूर करते और मुसलमानों की सफों को टूटने से महफूज करते। मेरे भाई, मालूम ही हुआ कि मुश्किल कुशा अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। ये मुबारक हस्तियां हैं जिनके बारे में, जिनके मकाम को पहचानना, जिनसे मोहब्बत करना, जिनका एहतराम करना, जिनकी सुन्नतों को लाज़िम पकड़ना, और उन्होंने फितनों से कैसे मुकाबला किया, और उन्होंने कितनी हिकमत और दानाई के साथ उन्होंने इस्लाम मुसलमानों की खिदमत की, उनको जानना और उनके नक्शे कदम पर चलना, ये क्या है, हमारे लिए लाज़िम और जरूरी है। हमें इसका हुक्म दिया गया है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। आपने हुक्म दिया कि ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम लोग मेरी सुन्नत को लाज़िम पकड़ो, वाजिब समझो, और जहां मेरी सुन्नत ना मिले वहां खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाज़िम पकड़ो। अली रज़ी अल्लाह अन्हु इल्म में, कुरान के फहम में, कुरान की समझ में इतने आला दर्जे तक पहुंच चुके थे कि तर्जुमानुल कुरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने कुरान को समझा अली रज़ियल्लाहु अन्हु से। मैंने कुरान को समझा किससे? अली रज़ियल्लाहु अन्हु से। इल्म में, तक़वा में, ज़ुहद में, परहेज़गारी में, मेरे इबादत में और खशियत इलाही में अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हम पल्ला, मेरे भाइयों, शायद ही कोई था, चंद ही लोग थे, वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो तरबियत की थी, उन्हें जो तालीम दी थी अपने घर में और अपने सामने उन्हें जो इस्लाम सिखाया था, मेरे भाइयों हमारे लिए उसवा और नमूना है। और अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में रसूलुल्लाह से जो मोहब्बत थी, एक मरतबा किसी ने सवाल किया कि ऐ अली, कैफ़ काना हुब्बुकुम li रसूलिल्लाह, ऐ अली बतलाओ कि तुम लोग रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे क्या करते थे?
انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ہمارے اموال سے زیادہ، ہمارے گھر والوں سے زیادہ، ہماری جان سے زیادہ، یہاں تک کہ سخت گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک سخت گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں، چلچلاتی ہوئی گرمی میں، سخت پیاس کی حالت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام میں پورے طور پر داخل ہوں، اور اسلام کیا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن کی شکل میں یا غیر مطلوع احادیث کی شکل میں جو اللہ نے دین بھیجا ہے، وہی دین نجات کا دین ہے، وہی کامیابی کا راستہ ہے، اس سے ہٹنا گمراہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت کو ان تمام بدعات و خرافات، ان تمام گمراہیوں سے محفوظ رکھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔